Good morning, my dear children. In previous lecture, we have started lesson number 9, Environmental Management. In that lecture, we have completed weather and climate and also about meteorology. Today, we will start with the topic solid waste management. Okay, students? So, let us begin with the topic solid waste management. Observe the garbage collected in the dustbin of your classroom and make a list of these various materials in it. Discuss with your teacher how this material can be properly disposed of. Can we do the same with the garbage generated in our house? Think about it. जो भी गार्बेज हमारे स्कूल में मतलब क्लासरूम में डस्टबिन में कलेक्ट होते हैं, क्या हम लोग उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज कर सकते हैं? एक एक्टिविटी टाइप में दिया हुआ है, ये आपको खुद से समझना है और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. You can observe this picture over here. What do you understand by this picture? यहाँ पे वो रिसाइकल हो रहा है, मतलब जो भी सॉलिड वेस्ट है वो वापस रीयूज़ कैसे करते हैं, रिसाइकल होके रीजनरेट हो रहा है. तो देखो एरोज जा रहे हैं यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे टर्न हो रहा है. ठीक है, तो अगर वो प्रॉपरली डिस्पोज्ड होगा तो वो एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा और बहुत बार वो रिसाइकल भी होता है. सो व्हाट इज सॉलिड वेस्ट? कैन एनीवन टेल मी? एनीवन कैन? Many waste materials are generated through various daily human activities. Many waste materials are generated through various human activities. This is called as solid waste. जो भी काम करते हैं उससे बहुत सारे मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं, जनरेट होते हैं हमारी डेली लाइफ में. हम जो भी डेली एक्टिविटी करते हैं, रोज़ जो भी काम करते हैं, उससे बहुत सारे ऐसे वेस्ट मटेरियल्स जनरेट होते हैं. उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड वेस्ट. इफ दिस वेस्ट मटेरियल्स आर प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ, देन दे कैन बी वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. if we are disposing them properly, so they can become a valuable source of energy. They can provide us energy. Currently, solid waste is a serious worldwide problem as it causes both water and soil pollution. अगर सॉलिड वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज करो, जो भी गार्बेज है उसको प्रॉपरली डिस्पोज करो, तो वो हमें एनर्जी भी प्रोवाइड कर सकता है. बट nowadays it has become a worldwide problem. Okay students, it causes both the water pollution as well as soil pollution. Solid waste is also a serious problem from the point of view of economic growth, environmental degradation and health. It is also affecting our economic and even our health also. It has posed a serious threat to the nature and human habitat because of the air, water and soil pollution it causes. It is affecting our nature also and even our lifestyle also. The solid waste is affecting our nature, our environment, climate and even human habitat, our way of living. Because of that there is air, water and soil pollution, so which are affecting our health. Okay, you can observe the picture which is given in textbook. Next is garbage production per day. Per day, how much garbage is produced? Solid waste generated in the main metro cities of the state is approximately as follow. Metro cities means like Mumbai, Delhi, Pune, Nagpur, etc. So here the state is approximately as follows. Here it is given the ratio of metro cities like Mumbai, 5,000 ton per day. It is mentioned here garbage production per day. Per day means every day. Mumbai is producing 5,000 tons, Pune 1,700 tons, Nagpur 900 tons.
On 26 July 2005, a serious flood calamity had arisen in Mumbai. 2005 में 26 जुलाई 2005 को बाढ़ आई थी. आप लोगों को याद नहीं होगा तो भी कभी कभी पेरेंट्स के मुंह से सुना होगा या कहीं ना कहीं सुना होगा. जब बारिश का टाइम आता है तो कभी ना कभी न्यूज़ में अनाउंस करते कि लग रहा है जैसे 26 जुलाई की बारिश हो रही है. तो ऑन दैट उसी से रिलेटेड दिया है. ऑन 26 जुलाई 2005 अ सीरियस फ्लड कैलामिटी हैड अराइजन इन मुंबई. मुंबई में फ्लड हुआ था, बाढ़ आ गई थी. इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वॉज वन ऑफ द मेन रीज़न बिहाइंड द कैलामिटी. इसका मेन रीज़न क्या था? जो भी सॉलिड वेस्ट है उसको प्रॉपर बोलते हैं ना, प्रॉपरली उसका कोई सोल्यूशन नहीं था, मतलब उसको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया था. तो ये भी एक मेन रीज़न था. यहाँ पे लिखा ना इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्रॉपरली सॉलिड वेस्ट को मैनेज नहीं किया था. इट इज़ वॉज इम्प्रॉपर. सो बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वॉज वन ऑफ द मेन रीज़न बिहाइंड द कैलामिटी. जो भी बाढ़ आया था उसका एक मेन रीज़न ये भी था. Thus we see that accumulation of solid waste can lead to various calamity. So because of this various calamities can occur. Okay students, so you have to learn what is meant by the solid waste, what are the different things included in the solid waste, what are the different things. Okay, next we will learn about the classification of solid waste. Classification of solid waste. Here you can see the table. Classification and source. First is domestic waste. In domestic waste, words come waste food, paper, plastic paper, plastic bags, vegetable waste, fruits, skins, glass, sheet metal articles, etc. अगर कैसे भी अभी मतलब सॉलिड वेस्ट पड़ा है या कहीं पे फेंका हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा वो कौन से मतलब किस में आता है? डोमेस्टिक वेस्ट में आता है या इंडस्ट्रियल वेस्ट में आता है, हजार्डस वेस्ट में आता है या फार्म गार्डन वेस्ट में आता है. Otherwise it is electronic waste or biomedical waste. So here they are classified according to their group. These are the sources. These are the different groups. तो first is domestic waste. Okay, मतलब जो हमारे घर से जो वेस्ट रिलीज़ होते हैं, जो भी सॉलिड वेस्ट घर से रिलीज़ होते हैं, वेस्ट फूड, खाना, पेपर, पेपर्स, प्लास्टिक के बैग, जो भाजी की थैली होती है, वेजिटेबल वेस्ट, जो भाजी कट करने के बाद, सब्जी कट करने के बाद जो भी उसके कचड़े होते हैं, फ्रूट्स, स्कीट, ग्लास, ये सब डोमेस्टिक वेस्ट है जो घर से रिलीज़ होता है. सेकेंड इज इंडस्ट्रियल वेस्ट. केमिकल्स, पिगमेंट्स, स्लज, एश, मेटल एक्सेट्रा विच आर कमिंग आउट ऑफ इंडस्ट्री. केमिकल्स हो गए, पिगमेंट्स हो गए, स्लज हो गए, ऐश, राख हो गया, मेटल्स हो गया, ये सारे इंडस्ट्री से रिलीज होते हैं तो इसके लिए इसको इंडस्ट्रियल वेस्ट बोलते हैं. थर्ड इज हजार्डस वेस्ट. केमिकल्स जनरेटेड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, एक्सप्लोजिव यानी बम बनाने के लिए या ऐसे कुछ फायर क्रैकर्स बनाने के लिए यूज़ होते, वो एक्सप्लोजिव होते हैं. इन्फेक्शियस मटेरियल एक्सेट्रा. फोर्थ इज फार्म वेस्ट और गार्डन वेस्ट. लीव्स, फ्लावर्स, गार्डन में जो सूखी पत्ती गिर जाती है, फ्लावर्स हो जाते हैं, लकड़ी मतलब पेड़ की लकड़ी टूट जाए, गार्डन हो या फार्म हो. सो लीव्स, फ्लावर्स, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, क्रॉप रेसिड्यूज लाइक स्ट्रॉ, एनिमल यूरिन एंड डंग, पेस्टिसाइड्स, रिमेन ऑफ वेरियस केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा. फिफ्थ इज electronic waste. Non-functional TV set, the TV which is not working or not using. Cell phones, music systems, computers and their parts etc. are the electronic waste. जो टीवी नहीं चल रही है वो सॉलिड ही है ना, सॉलिड वेस्ट ही है ना, उसको आप यूज़ ही नहीं कर सकते तो वो वेस्ट ही है. सेलफोन ख़राब हो चुका है, म्यूज़िक सिस्टम, कंप्यूटर्स और देन
their body parts, etc. are the electronic waste. Next is biomedical waste. Bandages, dressing, gloves, needles, saline bottles, medicine bottles, test tubes, body parts, blood, etc. from clinical hospitals. These all comes from clinical hospitals. Then blood banks, laboratories. So these all are the biomedical waste. हॉस्पिटल से रिलेटेड, मतलब जो ग्लव्स पहनते हैं, आप भी देखो सब मास्क और ग्लव्स लगाए हैं. देन इंजेक्शन नीडल्स, सलाइन बॉटल जो ग्लूकोज की बॉटल्स चढ़ाते ग्लूकोज. देन मेडिसिन बॉटल्स, टेस्ट ट्यूब्स. दीज आर ऑल बायोमेडिकल वेस्ट. नेक्स्ट, अर्बन वेस्ट. वेस्ट जनरेटेड थ्रू हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज एंड लार्ज कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट कैरी bags, glass, metal piece and rods, threads, rubber, paper, cans from shops, vegetable and meat markets, construction waste, etc. are the urban waste. Radioactive waste. Radioactive material like strontium-10, cerium-141, barium-140 and heavy water, etc. generated from atomic energy plants. The atomic energy plants are there. From there, when these are the generated, these are the radioactive waste. Uranium mines, atomic research centers, nuclear weapons testing sites, etc. From this site, these materials are released. Last is mining waste. Remains of heavy metals like lead, arsenic, cadmium, etc. from mines. ये जो भी मेटल्स दिए, इनके जो रिमेनिंग, इनके जो बचे हुए पार्ट होते हैं, वो यहाँ माइनिंग से आउट होते हैं. माइनिंग से वेस्ट पार्ट्स रिलीज होते हैं. सो दिस वाज ऑल द क्लासिफिकेशन ऑफ what I was teaching you. This is classification of solid waste. Okay, students. Solid waste is also classified as biodegradable waste, non-biodegradable waste. They are also classified as biodegradable and non-biodegradable waste. Okay, students. First, we will talk about biodegradable waste. This type of waste is easily degraded by microbes. It is mainly includes kitchen waste like spoiled foods, fruits, vegetables, ash, soil, dung, parts of the plant, etc. This waste is mainly of organic type and it is also called as wet solid waste or wet garbage. If it is carefully decomposed, we can get compost and fuel of good quality from it. Such biofuels projects have been started in many cities. ये जो भी है, ये मोस्टली हमारे किचन से रिलीज़ होता है. ओके स्टूडेंट्स, जो भी वेट सॉलिड मतलब गीला सामान होता है, सॉलिड आपको पता ही है, लिक्विड सॉलिड गैस तो आपको पता है. तो जो भी गीला वेट सॉलिड वेस्ट होता है या वेट गार्बेज जो होता है, गीला कचरा जो भी होता है सॉलिड, वो जो भी घर से रिलीज़ होता है, उसको अगर केयरफुली डिकम्पोज करेंगे ना, तो हमको अच्छी क्वालिटी का कंपोस्ट और फ्यूल मिलता है. ऐसे बहुत सारे सिटीज़ में बायोफ्यूल प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो गया है. ओके, सो यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल. जो भी घर से, आपके घर से, किचन से जो भी रिलीज़ हुआ है, उसको प्रॉपर्ली अगर आप डिकम्पोज करोगे तो उसमें से आफ्टर डिकम्पोजिंग यू विल गेट अ गुड क्वालिटी ऑफ कंपोस्ट एंड द फ्यूल फॉर द यूज़. सच बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स हैव स्टार्टेड इन मेनी सिटीज़. ऐसे प्रोजेक्ट्स बहुत सारे सिटीज़ में स्टार्ट हो गए हैं. नेक्स्ट इज non-biodegradable waste. This type of waste is not easily degraded because it is require a very long period of time and the use of various techniques. ये easily decompose कर सकते हो, ये डिग्रेडेबल है, बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो easily डिग्रेडेड नहीं होते. वाई? बिकॉज इट रिक्वायर्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम.
It not require a long period of time, but non-degradable require a long period of time and various techniques. It includes plastic, metal and other similar materials. इसके लिए प्लास्टिक बैन किया था ना, क्योंकि वो ईजिली आप उसको मतलब बोलते हैं ना डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, उसके लिए बहुत टाइम लगता है। इसके लिए बीच में प्लास्टिक को बैन कर दिया था। अभी भी बैन है बट फिर भी लोग यूज़ करते हैं। इट रिक्वायर्स वेरियस टेक्निक्स। द थिंग्स इंक्लूडेड इन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर प्लास्टिक, मेटल एंड अदर सिमिलर मटेरियल्स। दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राई सॉलिड वेस्ट और ड्राई गार्बेज। जो वेट सॉलिड वेस्ट और वेट गार्बेज है वो डिग्रेडेबल है, बट जो ड्राई सॉलिड वेस्ट और ड्राई गार्बेज है वो डिग्रेडेबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस? ओके, नेक्स्ट इज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। जो भी सॉलिड वेस्ट है उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है? Effect on biodiversity. The solid waste is also affecting our biodiversity. Bad odor of waste. जो वेस्ट है उसका ऑर्डर मतलब गंदी स्मेल आती है ना, जहाँ पे भी फेंका रहता है पड़े पड़े सड़ने लगता है तो उसकी गंदी स्मेल आती है, तो ये भी एक हार्मफुल इफेक्ट है। थर्ड इज प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक गैसेस। द गैसेस विच आर वेरी हार्मफुल टू अस, they are producing those type of gases. Fourth is degradation of natural beauty. जो भी हमारा नेचर है उसको भी अफेक्ट कर रहा है, उसकी भी जो मतलब जो क्वालिटी है उसको भी रिड्यूस कर रहा है। मतलब आप प्रॉपरली आपका जो नेचर है, जो ग्रीनरी दिखती है उसको भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। इट इज़ अफेक्टिंग द एयर पोल्यूशन। जब कोई सॉलिड वेस्ट है उसको अगर आप जला दो या डिस्ट्रॉय कर दो तो उसमें से जो टॉक्सिक गैसेस, जो हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है वो एयर में मिक्स होती है और एयर पोल्यूशन क्रिएट करती है, विच इनडायरेक्टली अफेक्ट अस। सो इट इज़ हैविंग अफेक्ट ऑन एयर पोल्यूशन, एयर। नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन। इट इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग आ वाटर। जैसे कोई सॉलिड वेस्ट है वो रिलीज हो रहा है इंडस्ट्री से या घर से कहीं से और जाके वाटर में मिक्स हो रहा है और वही वाटर फिर हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, तो अगेन इट इज़ इनडायरेक्टली अफेक्टिंग आवर हेल्थ। सो इट इज़ द सॉलिड वेस्ट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द वाटर पोल्यूशन, इवन इट इज़ पोल्यूसिंग अफेक्टिंग द सॉइल पोल्यूशन। एंड द लास्ट इज स्प्रेडिंग ऑफ डिजीजेस। बिकॉज ऑफ दिस देर आर लॉट ऑफ डिजीजेस occurring in environment. Okay students, so there are 8 effects of solid waste. If first is effect on biodiversity, second bad odor of waste, third production of toxic gases, fourth degradation of natural beauty, fifth air pollution, sixth water pollution, seventh soil pollution, and the eighth is spreading of disease. They are spreading the diseases. Okay students, next topic is necessity of solid waste management. The necessity of solid waste management. Necessity means necessary. Why it is necessary for solid waste management? First, for preventing environmental pollution and keep the surrounding clean. इन्वामेंटल पोल्यूशन जो है उससे बचने के लिए और हमारा जो सराउंडिंग है उसको क्लीन करने के लिए। सेकेंड पॉइंट, क्यों सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नेसेसरी क्यों है, पहला पॉइंट हो गया। नाउ सेकेंड पॉइंट, फॉर एनर्जी एज वेल एज फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, फॉर एनर्जी एंड ऑल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग फर्टिलाइजर्स, एंड थ्रू दैट टू जनरेट वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। उससे वर्क करो और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी, मतलब उससे बहुत सारे जॉब बन जाएंगे तो लोग जॉब कर पाएंगे। अब कोई काम रहेगा, अभी जब सॉलिड वेस्ट जो भी है उसको आप डिकम्पोज करोगे तो ये मतलब एक काम ही है ना, तो आप इससे कोई किसी को जॉब मिल जाएगी। कोई ये काम करेगा तो उसके लिए भी अच्छा हो जाएगा, वो उसको एक जॉब मिल जाएगी।
सो ये फर्टिलाइजर प्रोडक्शन भी करता है एंड जनरेट वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मतलब जॉब की एक अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी कि आपको ये काम करना है, यहाँ पे ये जॉब है। थर्ड, टू रिड्यूस द स्ट्रेन एंड नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज उसको डिस्ट्रॉय होने से उसको और रिड्यूस मतलब वो कम होने से भी बचा सकते हो, क्योंकि ये इतने हार्मफुल होते हैं जो हमारे नेचर को अफेक्ट करते हैं। फोर्थ, टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड मेंटेन इन्वायरमेंट बैलेंस। टू इम्प्रूव आवर हेल्थ and the quality of life which we are living our life in the air pollution, water pollution and soil pollution. So we can improve our health and the quality of life and we can maintain our environment balance. Okay, so it is the need of our to implement solid waste management practice to avoid the possible problem due to the solid waste generated from urban and industrial areas and to maintain a clean environment. For this purpose, we should implement measures like increasing the efficiency of the production process so that minimum waste will be generated. It depends upon how we minimize the waste. Reducing garbage, we should reduce the garbage. Production of recycling, and we should use those things we can recycle and reuse. Okay. Here is the scientific and eco-friendly waste management. Separation and categorization of waste. जो भी हम लोग वेस्ट थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, उसका सेपरेशन होना चाहिए और कैटेगराइजेशन होना चाहिए, मतलब कैटेगरी होनी चाहिए। जैसे आपने देखा था वेट गार्बेज अलग होना चाहिए, ड्राई गार्बेज अलग होना चाहिए, तो इसे सेपरेशन और प्रॉपर कैटेगरी के हिसाब से होना चाहिए। सेकेंड, कंपोस्टिंग मतलब उसका कंपोज कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए वो। नेक्स्ट, सेफ लैंड फिल साइट्स, वहाँ पे डिकम्पोज करो या कंपोज करो जहाँ प्रॉपर प्लेस हो। वर्मिक कंपोस्टिंग, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, pyrolysis like energy production by the burning of waste at high temperature। जो भी आप वेस्ट है उसको हाई टेम्परेचर पे बर्निंग करोगे उसको दैट इज़ पायरोलाइसिस। एग्जाम्पल बायोगैस, बायो इलेक्ट्रिसिटी। द लास्ट इज़ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट मतलब जो भी हॉस्पिटल से जो ग्लूकोज की बॉटल, इंजेक्शन, ग्लव्स, ये सारे जो वेस्ट मटेरियल रिलीज होते हैं that comes in biomedical waste management. So these were the scientific and eco-friendly waste management. By this way you can do the solid waste management. Okay students, clear with this?